दिल्ली में कल इजराइल एम्बेसी के बाहर धमाका हुआ। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन धमाके की वजह क्या थी क्या नहीं थी इन्वेस्टिगेशन बताएगी। लेकिन इजराइल के एम्बेसडर क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। Ron Malka, where is the investigation headed to? I heard your statement yesterday. Good that everybody is safe. And where is the investigation headed to? And are Israeli investigation team joining the investigation? Well, the investigation is ongoing, still gathering all the pieces and the evidence that we get from the scene and pieces of information from all over. There is a full collaboration between the Indian authorities and the Israeli authorities. And as of now, our assumption, strong assumption, that it is a terror attack that targeted the Israeli embassy. Fortunately, as you mentioned, nobody was hurt, and all the diplomats and their families are safe. So you call it a terror attack. Any indication from where it is coming from? No, well, all the options are there on the table. What we can see, and I should mention, is that yesterday, when this ever attack was conducted, we celebrated the 29th anniversary for the full establishment of diplomatic relations between Israel and India. Exactly yesterday. 29 years of thriving and growing relations between Israel and India. We just celebrated yesterday, so it might not be a coincidence. But again, all the options are investigated. So what kind of collaboration is going on between Indian security agencies and Israelis? Can you throw some light on that? Yes, of course. We share the information that we have. You know, any kind of this investigation is, gathering the pieces and building the puzzle. So we share different parts of information and evidence that we have from the scene, analysis that we have. So we share it all together and trying now to bring all the pieces from both sides together and to build the puzzle. This is the second attack near embassy in some years. Last attack was indicated to the Iranians. So do you think there's a pattern, and do you see any similarity in the two attacks? Well, this is one of the options. As you mentioned, in 2012, there was a terror attack against Israeli diplomats here in Delhi, not far from the embassy. And again, it might be connected, might be a pattern. That's what we are now just investigating. And the investigation is still in its early stages. So it's still too early to say. But this is, of course, one of the options that is investigated. इजराइल के दूतावास को आपने सुना। यहां दूतावास में जो व्यक्ति थे, एम्बेसडर थे, उन्होंने बताया कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इजराइल की एक टीम आएगी, दिल्ली पुलिस के साथ जांच भी करेगी। इसी खबर पर एक और बड़ा अपडेट आ रहा है। इजराइल दूतावास के पास धमाके का मामला है। एनआईए की टीम जांच के लिए मौके पर इस वक्त पहुंची है। एनआईए के 6 से 7 लोगों की टीम घटनास्थल पर पहुंची है। सुबह दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने भी किया था दौरा, और कल रात जब ब्लास्ट हुआ था तो उसके बाद भी स्पेशल सेल के लोग वहां पहुंचे थे, और एनआईए के एक ऑफिसर भी देर रात वहां पहुंचे थे। जो एविडेंस जुटाने का काम चाहिए वो इस वक्त शुरू हो गया। बिल्कुल। और देखिए, बड़ी जानकारी सामने आई है कि एक लिफाफा मिला था जिस पर कुछ लिखा हुआ था, और अब लगभग तस्वीर साफ होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ये टेरर अटैक से जोड़कर देखा जा रहा था, और अब ये साबित भी हो गया है कि ये टेरर अटैक ही था, क्योंकि उसमें लिखा गया था ये तो बस ट्रेलर है, यानी कि पिक्चर अभी बाकी है। कुछ बड़ा आतंकी हमला, बड़ी साजिश हो सकती है। और आपको बता दें, इसी के तहत पूरी जांच पड़ताल जारी है। लगातार इस पर गृह मंत्री अमित शाह भी नजर बनाए हुए हैं। एनआईए की टीम भी घटनास्थल पर मौजूद है। पूरा मुआयना इस वक्त किया जा रहा है। खबर यह भी आई कि जो धमाका हुआ है वहां कोल्ड ड्रिंक कैन भी इस पूरे धमाके के दौरान इस्तेमाल की गई है। इजरायली दूतावास के पास ब्लास्ट से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। 23 जनवरी को ही आईबी ने किया था अलर्ट। इजरायली दूतावास के पास धमाके का था अलर्ट। इस्लामिक स्टेट से जुड़े संगठन पर हो सकता है ब्लास्ट की साजिश का। इस वक्त की बड़ी खबर, 23 तारीख का बड़ा इनपुट था इंटेलिजेंस का कि इस तरीके का धमाका हो सकता है, और इस तरीके का धमाका हुआ। बड़ी बात यही है कि अगर इनपुट था तो समय रहते एहतियात क्यों नहीं बरता गया। बिल्कुल। और ये कोई बड़ा आतंकी हमला भी हो सकता था। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि उससे कुछ ही दूरी पर आपको बता दें बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी चल रही थी उस वक्त, और उसी दौरान 5:05 पर यह हमला होता है, माफ कीजिएगा, ये ब्लास्ट होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल
कि जब पहले से अलर्ट था तो वहां पर सुरक्षा मुस्तैद क्यों नहीं की गई थी, आखिर चूक कहां पर हुई, भूल किससे हुई। और अब ये पूरा मामला गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है और दो सहयोगी इस वक्त हमारे जुड़े हुए हैं, आदित्य नायर और राकेश सिंह जुड़ गए हैं। सबसे पहले राकेश आपके पास आना चाहूंगी, चूंकि बहुत बड़ी ये घटना है। पहले कल तक देखा जा रहा था मामूली ब्लास्ट हो सकता है कि किसी ने ये मजाक करने की कोशिश की हो, किसी ने अटेंशन गेन करने की कोशिश की हो, लेकिन जो उस लिफाफे में लिखा उसमें कहा गया है ये तो ट्रेलर है, यानी कि कुछ बड़ा हो सकता था, किसी बड़े मंसूबे को आगे अंजाम दिया जा सकता है। राकेश, देखिए, खुफिया एजेंसियों ने पहले इस बात को लेकर अलर्ट किया था कि जो इजराइल के एम्बेसी हैं या जहां पर जीव पॉपुलेशन रहता है वहां पर आतंकी हमले हो सकते हैं। रही बात कि इजरायली दूतावास के पास कल शाम को बम धमाके से जुड़ा एक लिफाफा मिला, जिसके बाद इस घटना का ईरान कनेक्शन सामने आ रहा है। इस लिफाफे में इस ब्लास्ट का ट्रेलर बताया गया है और बदला लेने की बात कही गई है। मौके से मिले लिफाफे में 2020 में मारे गए कासिम सुलेमानी और ईरान के वरिष्ठ न्यूक्लियर वैज्ञानिक मोहसिन फखरजादे का भी जिक्र किया गया है। लिफाफा मिलने के बाद पूरी तौर पर जो ईरानी कनेक्शन है वो सामने आ रहा है। इससे पहले साल 2012 में इजराइल की एक कार में धमाका हुआ था और इस धमाके में 2 ईरानी शामिल थे। ये लोग दिल्ली के पहाड़गंज के होटल में रुके थे। क्या जांच एनआईए ने अपने हाथ में ले ली है? क्या एमएचए ने जांच एनआईए को दे दी है या दिल्ली की स्पेशल सेल करेगी? और खबर यह भी आ रही है कि इजराइल से भी एक टीम आएगी जो दिल्ली में एजेंसीज के साथ जांच करेगी। देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं कि ईरान की, माफ कीजिएगा, इजराइल की मोसाद की टीम जो है घटना की जांच के लिए दिल्ली आ सकती है, आने की खबर है। ठीक है राकेश, ठीक है, हम वापस भी आएंगे, इसी बड़ी खबर पर बने रहेंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्लास्ट से जुड़ी हर अपडेट, इन्वेस्टिगेशन क्या कह रही है, क्या मोसाद की टीम यहां आएगी, क्या एनआईए को क्या क्या मिला है शुरुआती जांच में, सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।